Hello students. So in our previous session we have talked about the condition of peasants which was there during the French Revolution, which has actually led to the French Revolution. Today we are going to complete a section 1's explanation part. ठीक है, that is today we are going to discuss about subsistence crisis, what were the reasons which have led to the subsistence crisis, and most importantly the contribution which was made by the French philosophers during the French Revolution. So let's start up today's session now, students. So first of all, let's talk about the meaning of the term subsistence crisis. So what was this subsistence crisis, students? An extreme situation where the basic means of livelihood were endangered. ठीक है, subsistence crisis क्या था? An extreme situation where the basic means of livelihood were endangered, जिसको simple terms में आप लोग क्या बोल सकते हो कि it was the situation in which the citizens were not able to fulfill the basic needs of their life. ठीक है, जैसे इंडिया में इसको आप क्या बोलते हो? The citizens they are living under poverty. फ्रांस के टर्म्स में वहाँ पे उसको क्या बोलते थे? It was known as subsistence crisis. So what were the reasons of this subsistence crisis? First reason of this was there was increase in population. और population increase भी कितना हुआ? That was from 23 million. The population has now become 28 million. Another reason which was there of this subsistence crisis was there was increase in the demand of food grains. फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ गई. इसको ऐसे देखो, फर्स्ट पॉइंट से लिंक कर दो सारे पॉइंट्स को. पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? देयर वॉज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स. डिमांड तो बढ़ गई, बट एक साथ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते ना. तो क्या था? देयर वॉज लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तीनों पॉइंट्स लिंक हो गए. फर्स्ट पॉइंट लर्न कर लिया, उसी से हो गया. Increase in population, increase in demand of food grains, and less production of food grains. Another reason for this was workers, those were employed on fixed wages. Fixed wages और wages भी कैसे fixed थे उनके? Very less wages were given to the workers. क्यों? क्योंकि population बढ़ रही थी. तो जब population बढ़ेगी तो number of workers ज़्यादा होंगे ना, जिनको जॉब करना होगा वो ज़्यादा होंगे. इकोनॉमिक्स में भी बताया था मैंने, तो जॉब करने वाले ज़्यादा थे. तो वर्कर्स क्या थे? दोज वर एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड वेजेस, दोज वर वेरी लेस. एंड द थिंग्स दोज बिकेम वर्स्ट वेन एवर देयर वॉज एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर. से फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट और हेल. ड्रॉट और हेल क्या? सूखा पड़ गया. कंडीशन पहले से ही खराब है. क्या है? मैंने बताया लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट वॉज देयर. और उससे भी क्या हो गया? ड्रॉट इज देयर. तो जब ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो उससे क्या होगा? कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती थी. धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हुआ? द रिवोल्ट दैट वॉज कैरीड आउट. ये सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी कंट्री में, तो इसका रिजल्ट क्या होने लगा धीरे धीरे? द रिवोल्ट दैट वॉज बीइंग कैरीड आउट. और ये रिवोल्ट मेनली किसने कैरी आउट किया? इट्स ऑब्वियस द एजुकेटेड पर्सन्स, दोज विल बी कैरिंग आउट दैट रिवोल्ट. तो द रिवोल्ट दैट वॉज कैरीड आउट बाय मिडिल क्लास. ये एक्चुअली पार्ट किसका थे? दीज वर द पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू yesterday. तो द एजुकेटेड पीपल फ्रॉम दिस मिडिल क्लास दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट. और उनके पास रिवोल्ट को कैरी आउट करने के लिए मनी कहाँ से आता था? From where they were able to earn the living, that is through manufacturing of woolen and silk textiles and by expanding the overseas trade. They were able to earn the money through manufacturing of woolen and silk textile and expanding overseas trade. अभी मैंने बताया था एजुकेटेड मिडिल क्लास. तो यहाँ पे क्या था? देयर वर सर्टन फ्रेंच फिलोसोफर्स which have contributed to this French Revolution.
That is the contribution which was given by these French philosophers. In this slide the word philosopher that is missing. ठीक है, तो यू कैन एड इट अप योर सेल्फ. तो क्या था? द कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय फ्रेंच फिलोसफर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसको ध्यान से सुन लेना. दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो द फर्स्ट फ्रेंच फिलोसफर्स, हो सकता है आप लोगों को नेम्स थोड़े से अजीब लगे स्टूडेंट्स यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम यू माइट बी हियरिंग सच काइंड ऑफ नेम्स. तो द फर्स्ट फ्रेंच फिलोसफर्स विच वॉज देयर दैट वॉज John Locke, and the book which was written by John Locke was Two Treatises of Government. Now what was the theme of this book? थीम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि मतलब क्या बोला था इस बुक के थ्रू, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. दे एक्चुअली इन फ्रेंच फिलोसफर्स ने क्या किया था, दे हैव ट्राइड टू स्प्रेड देयर व्यूज एंड आइडियाज अमंग्स द सिटीजन्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स क्या हो, दे आर एनकरेज टू बिकम द पार्ट ऑफ द revolt, the French Revolution which was to be carried out. तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या डिस्क्राइब्ड है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क इज रॉन्ग. व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन? अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियसली कि पीजेंट्स दोज वर फोर्स्ड टू रेंडर देयर सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह से वर्क करना पड़ता था, बिल्डिंग रोड्स में हेल्प करनी पड़ती थी. तो दैट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन की सिंस दीज आर बोर्न इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ये क्लर्जी है, नोबल्स है, तो हमें इनको ऐसी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, दैट वॉज रॉन्ग. एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क, की सारी पावर्स किंग के हाथ में रहे, ये भी क्या है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. सेकेंड फिलोसोफर जीन जैक रोजियो, book written by him was Social Contract. I am once again repeating the name, Jean Jacques Rousseau. Book written was Social Contract. क्या डिस्क्राइब किया अपनी बुक में? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो कैसे फॉर्म हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल टर्म्स में वोटिंग होनी चाहिए. जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो कैसे फॉर्म हो, इट शुड बी फॉर्म बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल. एंड द थर्ड फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू, कौन सी बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज. क्या डिस्क्राइब किया, कि दैट देयर शुड बी डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आप लोग डिटेल में कई बार पढ़ चुके हो. लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव्स आर देयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज लॉज, एंड जुडिशरी इज द कोर्ट सिस्टम. इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी क्या होता है, दिस मॉडल ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दैट इज फॉलोड. बट वेयर वॉज दिस मॉडल फर्स्ट अडॉप्टेड? That is, this model of legislature, executive and judiciary was first practiced in USA. Other than that, the ideas of these philosophers कैसे spread हुए अब ये citizens के amongst? That is, these ideas, those were discussed in saloons and coffee shops. सिंपल टर्म्स में ऐसे देख सकते हो कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे, वहाँ पब्लिक प्लेसेस में क्या होता था, दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड. अदर देन दैट, दोज वर स्प्रेड थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. ठीक है, कौन कौन से थ्री फिलोसोफर्स पढ़े हम लोगों ने? जॉन लॉक, जीन जैक रूसियो एंड मॉन्टेस्क्यू. And the description of the books written by them. That is, in brief, the theme we have discussed about these three. मॉडल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सबसे पहले कहाँ अडॉप्ट हुआ? इन USA. So that's it for today class. Today we have completed section 1. As your homework for today, again I am sending you few questions from economics chapter 2, people as a resource, as your homework, where you have to do those questions. Do those questions in your economics histories homework registers. So thank you class.